السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ میں اور کتنا صبر کروں، آغاز تلک ہیں تو کیا ہوا تمہارے رب نے تام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اپنے اللہ پاک سے جو کچھ مانگو، دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ پاک کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے بہنے والے وہ آنسو اور وہ راضی ہو جاتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے اور توفیق دے رہا ہے۔ تو جان لو اللہ پاک تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس چار مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ پاک اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں اللہ پاک یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تصریف قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری یہ خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو، اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بددعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ اللہ پاک نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ پاک نے نکالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے صبر کروایا۔ اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو سہ مصر تھے۔ تو کیا اللہ پاک کی مصلیتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اگر اللہ پاک تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکالنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا؟ تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے رب کی نافرمانی اور اپنی جیسے
यह तकलीफ खरीद ली तो अब अल्लाह पाक के इंतखाब का इंतजार करो। जो तोहफा, जो चीज उसने तुम्हारे लिए रखी है, उस चीज का इंतजार करो और यकीनन अल्लाह पाक का इंतखाब बेहद पुरसुकून होगा, जो तुम्हें यह बताएगा कि ताम एक नई मंजिल का आगाज होते हैं। अल्लाह पाक तो हमेशा से तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम ही नहीं समझ पाते। कोई शख्स या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें अल्लाह पाक से दूर कर दे, वो तुम्हारे लिए कभी बेहतर नहीं हो सकती। जो रास्ते तुम खुद बनाते हो वहीं तक मंजिल खत्म नहीं होती कि तुमने जो अल्लाह पाक से मांगा था और वो तुम्हें ना मिली तो तुम यह सोच लेते हो कि अब मैं कभी अपनी मांगी चीज को हासिल नहीं कर पाऊंगी। पर तुम यह क्यों नहीं सोचते, वो जात तो लामहदूद है, वो लाहासिल चीज को हासिल बना देती है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने पर कादिर है। जिंदगी कई रास्तों और कई परेशानियों में डालकर ही तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है। अल्लाह पाक तुम्हारे हालात और तुम्हारी परेशानियां तब तक नहीं बदलता जब तक तुम्हारा मन नहीं बदल देता, जब तक वो तुम्हें उन चीजों पर भी तुम्हें राजी नहीं कर देता जिसके लिए जो तुम्हारे बेहतर नहीं है। अल्लाह पाक जो दे उसकी रजा में राजी होना सीखो। अल्लाह पाक के नजदीक सब्र करने वाले बंदे बहुत प्यारे होते हैं। तो दुआ करना कभी मत छोड़ना उन चीजों के लिए जो तुम्हें नहीं मिली, और सब्र करना अपनी आखिरी सांस तक और मांगते रहना, क्योंकि उसके मौजूदों की कोई हद नहीं और वो अल्लाह है ना, वो तुम्हें कभी भी हीरे की जगह कोयला नहीं देगा। तो सब्र और यकीन किए रखो उस पर। हर तकलीफ से गुजरने के बाद, लोगों से ठोकरें खाने के बाद फिर जाकर तुम अल्लाह पाक की तरफ आते हो। अल्लाह पाक की मोहब्बत इस वजह से हासिल नहीं होती कि वो आपकी मांगी हुई चीज को नहीं देता, बल्कि वो बंदे में खुद के लिए एहसास, सब्र, कल, यकीन और उम्मीद देखा करता है। तब जाकर अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत, रहमत और बरकत से नवाजता है। तन्हा रातों में जब रोते सजदे में गिर जाते हो, वो अपना बना लेता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में उसके लिए ना कोई तो मैल होता है और ना ही कोई उसके मुतालिक शिकवे शिकायत। आखिरकार गिरा गिरा कर भी बंदा अल्लाह पाक के दर पर आ ही जाता है। बंदा जानने लगता है मेरा नसीब बनाने वाला अल्लाह पाक है, वो चाहे तो पल भर में नसीब बदल देगा, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक तो हर बंदे के करीब ही होता है, लेकिन बंदा अल्लाह पाक के करीब नहीं होता। यह जो आजमाइश होती है, दुख दर्द, यह सबब होता है अल्लाह ताला की तरफ जाने का, उस जात का कुर्ब हासिल करने का। जब इंसान ख्वाहिशों से, दुनियावी मोहब्बतों से, हर उस चीज से मोहब्बत रखता है जो अल्लाह पाक से दूर करती और गफलत में डालती हैं, उन सबको तर्क करने से ही अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है। इसलिए आजमाइश या दुख दर्द की सूरत में अल्लाह पाक अपने बंदे को उस रास्ते से गुजारता है जिस रास्ते से हिस्सा से बंदे ने खुद को गुमराह किया होता है। उससे निकलने के लिए अल्लाह पाक झिझोरता है। अल्लाह पाक ने अपने नूर की तजल्ली और अपनी रहमत की तजल्ली उसके कल्ब में डालनी होती तो इंसान इस काबिल होगा, तो फिर रहमत खुदाबंदी जाहिर होगी। हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें वो नहीं दिया, यह नहीं दिया, वो नहीं दिया, यह नहीं किया, लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि उसने हमें जो दिया है क्या हम उसके भी काबिल हैं? वो जो करता है हमारे लिए क्या हम उसके लिए वो सब करते हैं? जब हम उससे गाफिल हो जाते हैं तो वो हमसे क्यों नहीं होता गाफिल? जब हम उसे छोड़ देते हैं तब वो हमें क्यों नहीं छोड़ता? जब हम उसके हुक्म की लाज नहीं रखते तो वो हमारे आंसुओं की लाज क्यों रखता है? हम यह सब सोचते ही कहाँ हैं? हम अपनी दुनियावी मोहब्बतों में खोकर उसकी मोहब्बत को खातिर में लाते ही कहाँ हैं? मगर फिर भी वो हमेशा कभी मुंह नहीं मोड़ता, हमेशा हमारे लौट आने का इंतजार करता है। हमारी तड़पती हुई एक आह भी नहीं सुन सकता और हमें सब अता कर देता है। जितनी मोहब्बत हम इंसानों से करते हैं जो हमें रुस्वा कर देते हैं, उतनी मोहब्बत अगर हम अल्लाह पाक से करें तो कभी रुस्वा ना हो। बस यह बात समझने में कभी कभार हम सारी उम्र लगा देते हैं। हमारी जिंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज में अल्लाह पाक की मसलियत है। किसी का जिंदगी में आना या चले जाना, रातों का टूट कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हजारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में उन तमाम यादों का बिखर जाना, यह सब अल्लाह पाक की रजा से है। अल्लाह पाक जानता है कि मेरा यह बंदा मेरी जानिब एक आवाज पर आ जाएगा और इस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा, तभी वो हमें जिंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। ठोकर पर ठोकर और बार बार गिरना, यह चोटें फिर अल्लाह पाक तक लेकर जाती हैं और ले जाए भी क्यों ना, उसकी दस्तरस में ही तो बस हर जख्म का मरहम है। मामलात
रब के सुपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फैसलों पर कभी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, फिर वक्त तहज्जुद आँख भले सो जाए पर दिल नहीं सोता। कोई तो बात है जो बस पर्दा छुपी हुई है, वरना वजह कोई भी शख्स सजदे में गिरकर जार जार नहीं रोता। अल्लाह पाक को पसंद है जब इंसान हजार गुनाह के बाद उसकी तरफ पलटता है, टूटी फूटी ही सही उससे माफी मांगता है, कच्ची पक्की ही सही उससे तौबा की तड़प मांगता है। यह टूटी फूटी कच्ची पक्की सी फरियाद भी अल्लाह पाक को बहुत प्यारी होती है। बस वो माफ कर देता है जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें यह वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूंगा। तुम्हारा नफ्स बार बार तुम्हें इस दुनिया की आर्जी लज्जतों की तरफ ले लवाएगा, तुम्हारा नफ्स बार बार तुम्हें असल राह से भटकाएगा, तुम्हारा नफ्स तुम्हें अल्लाह पाक से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, तुम्हारा नफ्स तुम्हें हमेशा की खुशी से दूर करने के लिए तुम्हें बार बार भक्ति ख्वाहिश में बहलाएगा। तुम्हें खुद से ही बार बार लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद को ही बार बार मारना पड़ेगा। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। इस यकीन के तसल्सल को टूटने नहीं देना, फिर देखना मौजे होंगे और कुन फयाकुन आसमान से उतरता देखोगे। आपकी सारी अजियत खत्म हो जाएंगी, बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। कबूलियत और मौजिज़ों के इशारे अल्लाह पाक यूं भी देता है कि तुम्हारे दिल को इंतजार से थकने देता है, न तुम्हारी जुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो यह नहीं देखता कि दुनिया इस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और न उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावट। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी हदें अपने आप खुल जाती हैं। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, यह सोच कर मेरा अल्लाह पाक मुझे लाजमी यह चीज देगा। और फिर अगर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो, अल्लाह पाक से इसरार करो, बार बार कहो, जोर देकर कहो, क्योंकि देने के लिए अल्लाह पाक के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है। और अल्लाह पाक बच्चों की तरह मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह पाक को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराजगी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह पाक हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है, और उसे यही काफी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के मोजजे कर देता है और सारी नाराजगी अपने कुन पर खत्म कर देता है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुंचा देती है, सातवें आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है, फिर कौन सा गम है ऐसा जो बाकी रह जाता है जब आसमान से फौरन तुम्हारे लिए मदद उतारी जाती है। सब्र के सफर में एक मकाम ऐसा भी आता है कि हम जब भी कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह पाक उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह पाक को चुन लेते हैं तो यह मकाम अल्लाह पाक खुद ब खुद में लिख देता है। लोगों की चाहत की फिक्र ना करें, क्योंकि उनके दिल बदलते रहते हैं। जो आज आपसे मोहब्बत के दावेदार हैं कल आपसे नफरत कर सकते हैं, और आप अपनी फिक्र इस बात पर रहने दें कि लोगों के रब की मोहब्बत आपको कैसे हासिल हो, क्योंकि अगर वो आपसे मोहब्बत करने लगा तो वो लोगों के दिलों में आपके लिए उल्फत डाल देगा। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है पर सब नहीं मिलता। हिदायत भी ऐसी ही मिलती है जैसे उसकी चाह होती है। तो जिस चीज की चाह होना उसे अल्लाह पाक से मांगते रहा करो। उसे अपने बंदे से मांगते हुए बहुत पसंद आते हैं, और वो मांगने की तौफीक भी उन्हीं को देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। और क्या तुमने नहीं सुना, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। जो अल्लाह पाक को हम सफर बना लेते हैं उन्हें सफर कभी खौफ जदा नहीं करता, और जो अल्लाह पाक से जुड़ जाते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जो दुआएं अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनके मुकम्मल होने को कोई मोड़ नहीं सकता। अल्लाह पाक से मांगने के बाद नामुमकिन के गुमान नहीं रखते। मांगने के तरीके सिखाकर जो तुम्हें कब से सुन रहा है वो तो जान लो कि हर किसी से वो इतने राबते नहीं रखता। कबूलियत के सहरा
بھی تب बेहद नजदीक होते हैं जब कबूलियत का यकीन दिल में डाल दिया जाता है और यकीन के रास्तों से वापस नहीं पलटते, क्योंकि यह सीधा वहां जाते हैं जहां अल्लाह पाक का कुन सदाओं के इंतजार में होता है। दिल को जब अल्लाह पाक की रजा पर राजी कर लिया जाए तब अपनी रजा के हो जाने का खौफ नहीं रखते। तुम्हारी तड़प देख कर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं और तुम मायूस हुए बैठे हो कि मेरे हाथ खाली हैं। तुम्हारे पास तो एक तोहफा है जो कि दुआ है। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ते, जब तुम कामिल यकीन अल्लाह पाक पर रखते हो, दुआएं करते रहते हो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। दिल बेचैन पर उसे ही तो पुकारा जाता है, चैन वही तो पड़ता है। तुम सुनाते रहोगे तो वह सुनता रहेगा, करम करता रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी कुन की होगी, तोहफा तुम्हारा मौजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे। अल्लाह पाक के सामने जितना चाहे रो लो, वो बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अल्लाह पाक के सामने रोने से बहुत सुकून मिलता है, दिल का सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कादिर है, इन आंसुओं का उसे एहसास है। अपने बंदे के दुख का वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का गुब्बार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो उस सफाफ और हसास दिल को सुकून से भर देता है। अल्लाह पाक से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह पाक को आवाज ना लगाओ, उस रोज अल्लाह पाक फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। और वो जो तुम्हारे दिल के नाखानों में छुपी वो सरगोशियां भी जानता है, वो अनकहे राज जो बिन मांगी ख्वाहिश, वो बेनवाज आरजू और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो। तुम मगर कहते नहीं, मानते नहीं, वो तो सब जानता है। तुम कुछ भी ना कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दिया करो या इजहार बेबसी कर दो। बस मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है और पलट कर यह भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं जाओगे। यह जो अल्लाह वाले होते हैं, यह दिलों में मैल नहीं रखते, दिलों में मैल रखकर बात नहीं करते, बल्कि यह दिलों में अल्लाह पाक का खौफ रखकर बात करते हैं। इसलिए उनकी बातों में तासीर होती है जो सीधा दिल पर असर करती है। जैसा गुमान करोगे अल्लाह पाक को वैसा ही पाओगे। अपने रब से कभी मायूस ना होना, चाहे हर तरफ अंधेरा छा जाए तब भी याद रखना कि अंधेरों पर गालिब भी वही है। कायनात में सुकून सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। अल्लाह पाक की याद के सिवा दुनिया की कोई भी चीज दिल की बहसत और अंधेरों को हरगिज खत्म नहीं कर सकती। याद रखो अल्लाह पाक के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लाह पाक का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी ही हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर ले, मनवा ले, वो अल्लाह है ना, मेरा अल्लाह रहीम मालिक हकीम, मेरा सब कुछ दिल पर सुकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आता है। गुमान भी नामुमकिन है। अपनी किस्मत को अल्लाह पाक पर छोड़ दिया करें, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआओं पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, क्या वही रब जिसने आपको पैदा किया, क्या वो रब जिसने आपको मुकम्मल इंसान बनाया, क्या वो रब जिसने आपको कड़े से कड़े औकात में भी संभाल के रखा, थाम के रखा, क्या वो रब जो मुसलसल आपको नवाजने जा रहा है, क्या वो इस काबिल नहीं कि उसकी कदर की जाए, उसका एहसान माना जाए, खुद को उसके एहसानों तले दबा हुआ महसूस करके देखा जाए। क्या आपने एहसास महसूस करके देखा है? क्या आपने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह को महसूस करके देखा है? नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों टाले जा रहे हैं? अभी भी वक्त है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों और कुदरतों को इनकार करोगे? जिंदगी तकलीफों का नाम है। यहाँ खुशियाँ आती हैं, चली जाती हैं, अगर कुछ छोड़ के जाती हैं तो उदासी। यकीनन तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घिरे हुए हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है, जिसे लिख के अल्लाह पाक ने तुम्हें थमा दिया, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती, वो यह कि आने वाला
वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पाक पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है और यकीनन बाद का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। अल्लाह पाक की मदद दो ही तरीकों से मिल सकती है, पहला नमाज, दूसरा सब्र। नमाज में आपने अपने तमाम मसले अल्लाह पाक को बता के खुद को बोझ से आज़ाद करा लेना है, फिर अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करना है, उसे सब्र कहते हैं। जब आप इन दो तरीकों को अपना लेते हैं तो सबसे फायदा पता है क्या होता है कि आप पैनिक होने से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि अल्लाह पाक बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से आपका काम संभाल लेगा। लोगों से मदद की उम्मीद, टेंशन, नाकामी का खौफ, धोखे का खौफ, उन सब परेशानियों से आप बच जाते हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ अल्लाह पाक हो जाता है और याद नहीं, यही मकसद नहीं था आपके और मेरे इस दुनिया में आने का। और सब्र और नमाज से मदद लिया करो। आप किस कदर परेशानियों और रंज आजमाइश से गुजर रहे हैं, उन्हें ना कोई समझ सकता है, ना कोई आपके लिए महसूस कर सकता है, ना कोई आपकी तकलीफ में बाकात आपका साथ दे सकता है। यह दुनिया इंसानों से भरी है, यहाँ सब अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। आप इनकी तकलीफ समझ सकते हैं, ना वो आपके गम आते हैं। तकाली आनी है, लेकिन उनका मकसद बाकात तब पूरा होगा जब आप अपनी तवज्जो समझेंगे, उसी से फरियाद करेंगे, उसी से मदद की उम्मीद रखेंगे। तब आप जानेंगे कि हजरत याकूब ने यह क्यों कहा था, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह पाक से ही करता हूँ। जब कभी तुम्हारा यकीन डगमगाने लगे और मायूसी की तरफ जाने लगो तो एक बार खुद से यह सवाल जरूर करना, क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग को गुलजार किया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा निकाला? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के खजानों का मालिक बनाया? क्या मेरा रब वो नहीं जिसने मकड़ी के कमजोर तरीन जाल के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं की? क्या इस दुनिया में मोजजात होना बंद हो गए या मेरे रब का इख्तियार कम हो गया? नहीं, मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है। मेरा रब वही है जो हजरत इब्राहीम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह पाक से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना रहे। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक का वादा है, वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी है। खुद को जब दुनिया से बेजार पाओ, कुरान उठाओ, दिल से लगाओ और रब के हो जाओ। अखलाक वो मोती है कि कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह पाक की रजा के लिए किया। जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जन्नत का दरवाजा खुलने ही वाला है क्योंकि रमजान आने वाला है। कोई अधूरी ना रहे दुआ किसी की, सब के लिए ऐसा मुबारक रमजान हो। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। नमाज तब सुकून देती है जब तुम सुकून से पढ़ो। नमाज की पाबंदी इंसान के मुश्किल वक्त को आसान कर देती है। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, रब नहीं। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है मगर सनातन लेती है। अगरचे मुख्तसर रहे लेकिन मखरी रहे। कई बनावटी चाहने वालों से एक मखली चाहने वाला बहुत बेहतर है। जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं, कभी खुद भी उसमें बैठकर देखिए। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, मगर हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। उसी तरह रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोले। लोग बदलते नहीं, बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। इसलिए किसी को मोहब्बत या इज्जत उतनी भी ना दो कि वो तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। वक्त बहुत कुछ दे जाता है, अच्छी बुरी बातें, बहुत बड़े और गहरे जख्म भी दे जाता है। इसलिए तो घड़ी में फूल नहीं बल्कि कांटे होते हैं। जो सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर यह कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। बात हमें तमीज से और
तराज हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और तराज के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश ही रहा करो। जुबान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं, वो तो शोर डालकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, मगर डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ ना इंसाफी की गुंजाइश नहीं होती वो देर है, अंधेर नहीं। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मनवी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी जरब वालों के लिए होते हैं। बेटियां वो खूबसूरत बोझ है जो अल्लाह पाक सिर्फ खुशनसीबों से उठवाता है। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। बाप की दुनिया वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे की बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ्फुज़ का एहसास दिलाते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक दुकान से दाखिल होकर दूसरे दुकान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जुबान में सबसे मीठी जुबान मतलब की होती है। हिम्मत करो, सब्र करो, बिखर कर भी सब्र जाओ, यकीन करो, शुक्र करो, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हर तबाही के लिए किसी की बदबाव कर सकता है। जिंदगी से इतना प्यार न करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को भी धोखा नहीं देती। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। जब कभी लोगों की दी हुई तकलीफ से दिल परेशान हो तो याद रखें, आपका रब बहुत मोहब्बत और तवज्जो बात को सुन रहा है, और सिर्फ वही है जो आपकी तकलीफ हो और परेशानियों को इंशाअल्लाह खत्म कर देगा। मोहब्बत और आंसुओं का भरम अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं रखता। जो अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक उसकी उम्र में इजाफा कर देता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जब आप दिल से किसी की मदद करते हो तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए दुआ करना। यकीन करें, उस वक्त जो दुआ उसके दिल से निकलेगी वो कभी रद्द नहीं होगी। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। खामोशी इख्तियार कर ले मगर गिला मत करें, गुस्सनसी हो जाएं मगर अपना मियार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कसी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। सब्र करना और कद्र करना नसीब के वो हिस्से में आता है। आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने के एक्सपर्ट होते हैं। चीजें अपने कमाए हुए पैसों से खरीदे, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।